Welcome back, friends. In today's lecture, we are going to learn one more topic in the complex number. It is cube root of unity. Students, what do you mean by unity? Unity means one. And we have to take cube root of this particular one. So let us define what should be the cube root of unity we can get. So let me have this cube root of 1 that is equals to x. हमें जो फाइंड आउट करना है क्यूब रूट किसका 1 का. दैट क्यूब रूट ऑफ 1 आई एम assuming as x. ठीक है. From this step I am beginning. So now this cube root will be transferred to right hand side. It is going to become cube. So 1 equals to x cube. 1 equals to x cube. And now I can consider x cube minus 1 is equals to 0, where I can take x cube minus 1 as 1 cube is equals to 0. And now I can take here left hand side a cube minus b cube formula. What is the formula of a cube minus b cube? A cube minus b cube formula क्या है students? A minus b into bracket a square plus ab plus b square. This result here you have to apply. So x minus 1 into x square plus x into 1, that is going to be x, plus 1 square, that is going to be 1, is equals to 0. Now student, from this step onwards, I can consider x minus 1 is equals to 0 or x square plus x plus 1 is equals to 0. So the two possibilities we are generating, and then the first possibility out of that we can take this x equals to 1, which is the one particular answer we have generated, and the next part, which is x square plus x plus 1 as a quadratic equation. We have to simplify further to get the values of the x, because one value of x, that x equal to 1, we already got. From that, x minus 1 is equals to 0, and the next simplification is now to be done for this quadratic equation. Now let me first see that any factor is possible at present in this quadratic equation. Is not possible. 1 का factor करके plus करके answer 1 चाहिए. This is not possible at all. So here what we are going to apply, that is formula method. So either a value is 1, b value is 1, c value is 1. Now as we know, x is equals to the formula method minus b plus or minus under square root b square minus 4ac upon 2a. This particular
formula method we need to apply. So x is equals to -1 plus or minus under root b square, that is 1 square minus 4 into 1 into 1 whole upon 2 into 1. So -1 plus or minus under root 1 minus 4 upon 2, and this is going to be -1 plus or minus under root -3 upon 2, which is going to be -1 plus or minus, student, under root -3 है, so I can write 3 into -1 upon 2, which is further root में -1, that is going to be I, and that is -1 plus or minus √3, रूट के अंदर सिर्फ 3 बच जाएगा, so √3i upon 2. So this is what we have generated, the values of x, because it is in plus or minus. Because it is in plus or minus, see, then its roots means x की जो value है, it is also going to be -1 plus √3i upon 2, or x is equals to -1 minus √3i upon 2. So from this particular step, now we can recognize x का जो यहाँ हमें वैल्यू मिला, दो वैल्यू जो हमको मिला है, apart from that earlier we here got x value is equals to 1, this 1, this 2, and this 3. These are the three roots of particular, we can say, cube roots of unity. So students, now we can little bit elaborate this topic by discussing some of the properties about cube roots of unity. स्टूडेंट, पहले तो आपने शांति से देख लिया कि क्यूब रूट यूनिटी का मैंने किस तरह से निकाला. That is very very important part we have completed. This is a simplification I have made, and I have got this 3 cube roots of unity. अब स्टूडेंट्स, इसका हम कुछ और डिस्कशन, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में हम जाएंगे, and we will try to explore some conclusions which is very very important and useful for solving questions based on cube root of unity, which is we are going to do in the next coming exercise. So very importantly, what is my conclusion? Finally we got, hence cube root of unity is, एक x का वैल्यू 1 आया था, दूसरे दो ये हमारे को क्यूब रूट्स के यूनिटी के दो और रूट्स मिले हैं, टोटल 3 मिले हैं, जिसमें पहला 1, दूसरा है -1 प्लस √3i अपॉन 2, और तीसरा मिला -1 माइनस √3i अपॉन 2. स्टूडेंट अभी ध्यान से समझना, ये 3 जो क्यूब रूट हमें मिले हैं, ये जो 3 क्यूब रूट्स यूनिटी के हमको जो मिले हैं, इसमें से मुझे जवाब दीजिए 1 और ये जो बाकी के 2 क्यूब रूट्स हैं, उसमें क्या
डिफरेंस दिखता है। तो कि 1 जो है उसमें इमेजिनरी टर्म नहीं है, मतलब ये जो 1 है वो ऐसा क्यूब रूट है यूनिटी का जो रियल रूट है, वेर एज these two are having imaginary term and hence they are called as complex cube roots of unity। तो कोई आपको पूछेगा कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, टोटल 3 क्यूब रूट्स जो है उसमें से 2 क्यूब रूट ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं और एक क्यूब रूट जो है वो रियल है। सो आई वुड राइट हियर दिस वन is particularly real cube root of unity, and these both are complex cube roots of unity। ये बाइफर्केशन समझ में आया स्टूडेंट्स? ये बाइफर्केशन आपको समझ में आया? So in objective, in any other type of question also they may ask out of these 3 cube roots of unity, show complex cube roots of unity. So these two are complex cube roots and only one cube root, that is a one that is real cube roots। तो इससे हम अब आगे बढ़ते हुए हैं थोड़ा, अब इसके अंदर हम नोटेशन का उपयोग करते हैं। वी रिप्रेजेंट, तो ये एक मुद्दा यहाँ हो गया, तो कि 3 क्यूब रूट में से एक क्यूब रूट रियल है, बाकी के 2 कॉम्प्लेक्स हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, next one I am discussing, that we represent cube root of unity in notation as, नोटेशन के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किससे हम करने वाले हैं उसको आप समझ लेना, बिकॉज इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी यूज टू रिप्रेजेंट इन द नोटेशन। हमें ये क्यूब रूट पूरे का पूरा लिख के बताने की जरूरत नहीं है, उसका एक नोटेशन हम उपयोग में ले लेते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू represent, what we are going to represent, that particularly जो 3 हमारे पास क्यूब रूट्स हैं, that is 1, then the next one is -1 plus √3i upon 2 or -1 minus √3i upon 2। out of these 3 क्यूब रूट्स ये 1 को तो 1 ही रहने देंगे, but this particular -1 plus √3i upon 2 we used to say it is as omega। इस नोटेशन को क्या बोलते हैं? इट इज लुकिंग लाइक w but actually it is not to be write as a w, it is more or less w but we have to make proper curve, that way we write in that w form but it's look like similar to w, what we say as an omega। so this is a notation we used to say, and this is going to become ओमेगा स्क्वायर। अब ये रिलेशन क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। देयरफॉर ओमेगा जो हो गया -1 प्लस √3i अपॉन 2 एंड ओमेगा स्क्वायर जो हो गया दैट इज -1 माइनस √3i
अपॉन टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली नोटेशन को ध्यान में रखते हुए ये बात को आप याद रखना। सो 1 ओमेगा and omega square, these three we call it as are three cube roots of unity। इससे ये कंक्लूजन हो जाता है derive, and this conclusion actually is nothing but in terms of notation we have written earlier case। ये हमने जो स्टेटमेंट लिखाई था, तीन क्यूब रूट कौन से हैं, 1 -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू एंड -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। बट हमने क्या किया, सिर्फ इसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हमने ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स इट, ओनली दैट मच नोटेशन पार्ट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें हुई कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्यूब रूट की बात, जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हमने चर्चा की। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पहले फाइंड किया और उसके बाद उसके नोटेशन से हमने उसका जो है वो रिप्रेजेंटेशन देखा कि हाउ वी आर गोइंग टू नाउ आइडेंटिफाई द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। Okay, just you say one omega and omega square, it is enough to say that these three are cube roots of unity। अब स्टूडेंट्स हम इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसके डिस्कशन में मेन इम्पोर्टेंट बात है इसकी प्रॉपर्टीज। सो वेरी इम्पोर्टेंट सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज गिव हेडिंग। चलिए, गिव हेडिंग प्रॉपर्टीज of cube roots of unity, that is 1 omega omega square। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज के अंदर वेरी फर्स्ट property number 1, property number 1, that is complex cube roots are conjugate of each other। क्या है, complex cube roots are conjugate of each other। क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। टोटल 3 क्यूब रूट है ना, उसमें से 2 जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, हमने यहाँ लिखा है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू एंड -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, दिस टू आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स। सो दिस, उसके बारे में उन्होंने बात किया है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। क्या है, कॉन्जुगेट्स। तो ये आपको दिखना चाहिए, ये आपको पता चलना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू and -1 minus root 3 I upon 2 are
conjugate of each other. आपको स्टूडेंट वेरीफाई करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख सकते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट? दैट यू नो दैट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो उसकी इमेजिनरी टर्म की साइन क्या कर देनी है, उसकी चेंज कर देनी. सो वी नीड टू चेंज दैट साइन. So if you consider this as a complex number, as a cube root of unity, as a complex number, and this is what the sign of the imaginary term minus कर देना है उसको, ये है plus root 3i, and that particular plus root 3i will going to become minus root 3i, and hence it becomes the conjugate. And therefore if you see the reverse, that if you consider this as a complex number और उसका आप conjugate निकालोगे तो ये मिलना है. Just you to change the sign of the imaginary term, बाकी की साइन को कोई रियल टर्म है उसके साइन चेंज नहीं करनी रहती है, एज यू नो. सो दिस इज व्हाट बोथ आर गोइंग टू बी कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर. ये प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई होती है. सो दिस इज द नंबर वन प्रॉपर्टी. नेक्स्ट नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड. complex cube roots are squares of each other. Students, squares of each other. Complex cube roots are squares of each other. We are just talking right now for complex cube roots. So इसका मतलब क्या हो जाना है स्टूडेंट्स? दिस मीन्स -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, इसका स्क्वायर करोगे यू आर गोइंग टू जनरेट -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2, and if you do the square of this one, -1 minus root 3i upon 2 whole square, we are going to get -1 plus root 3i upon 2. So let's verify this. तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उसमें पहला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, उसका होल स्क्वायर करके देखेंगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस सेकेंड वन. And if you are squaring for the second one, you are going to get that the first complex cube root. तो एक दूसरे का स्क्वायर है, ये हमें मालूम पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ इसका स्क्वायर करके देखेंगे. सो LHS में इसका स्क्वायर -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 होल स्क्वायर, और स्क्वायर होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर को भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर होगा. सो इट इज गोइंग टू बी रूट 3i माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4. चलिए होल स्क्वायर एक्सपांड करो, दैट इज यू नो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला. रूट 3i होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3i into 1 plus 1 square whole upon 4. चलिए रूट 3i होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? रूट 3 का स्क्वायर 3, आई स्क्वायर का आई स्क्वायर. सो 3i स्क्वायर माइनस 2 रूट 3i plus 1 whole upon 4. And as you know, the value for I square, that is -1. So 3 into -1 minus 2 root 3i plus 1 upon 4. So
इन द नेक्स्ट स्टेप कॉन्स्टेंट जो मिला है -3 + 1 दैट इज गोइंग टू -2 होल अपॉन 4। तो अब यहाँ 2 को न्यूमरेटर में दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया जाए, सो इट इज गोइंग टू बी -1 - √3i अपॉन 4, 2 2 जा 4, cancel. So it is going to be -1 - √3i upon 2, which is actually, you can notice that the right hand side -1 - √3i plus 2, that is you are getting, and as a result this particular property is satisfied. So student, importantly ये जो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट था ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। ये दूसरा वाला आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको चेक करके दिखाया, उसी तरह से आप इसका होल स्क्वायर करो तो आपको जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो मिल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाई होना है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है दे आर द स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो वो मिलेगा। So with that, this second property is verified, and we have even seen its particular proof part, which is the second one we have completed. Next, number third. Let us discuss property number third. चलिए, property number third is about sum of cube roots of unity is 0. सम किसका सम? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। किसका सम? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी हमने देख लिया ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो हमने 3 ढूंढा है कि नहीं। ये 1 -1 + √3i -1 - √3i अपॉन 2। अब ये तीनों का सम, मतलब हमने इसको नोटेशन लिखा था ओमेगा, ये है ओमेगा स्क्वायर, और ये तो 1 का 1 ही रहना है। सो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0। मतलब जो प्रॉपर्टी का नोटेशन वाइज जो स्टेटमेंट बनता है, दैट इज आई एम गोइंग टू राइट 1 + ओमेगा स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0। अब if this property is also going to prove you that right hand side you will get 0 if you take left hand side, and we can obtain the verification part. And as you know, what is the value of omega, and then second जो हमने मान के चला है ओमेगा स्क्वायर, that you have to substitute. So omega, this -1 + √3i -1 + √3i अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर जो है -1 - √3i अपॉन 2। इसको आप एडिशन में ले लीजिए, आप आगे सिंप्लीफाई करें और उसका आप देखो, आपको आंसर 0 मिलना चाहिए। सो इन शॉर्ट, विदाउट एक्सपांडिंग दिस, ये दोनों को ऐड करने के हिसाब से डिनोमिनेटर तो सेम है, सो न्यूमरेटर विल ऐड, तो क्या हो जाएगा -1 + √3i प्लस, और इसके बाद ये जो ओपन हो जाएगा ये -1 - √3i होल अपॉन 2। डिनोमिनेटर सेम है ना,
तो ये देखो -√3i प्लस √3i कैंसल, एंड एज अ रिजल्ट न्यूमरेटर में क्या बचेगा, -1, that is going to be -2/2. This is also going to be cancelled. So 1 plus -1, that is also cancelled, and answer is going to be 0. So this is proved as a right hand side 0 कि हमें वर्बली भी कोई स्टेटमेंट के लिए बात करता है, नोटेशन के अंदर तो हमने देख ही लिया उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, बट द स्टेटमेंट फॉर्मेट if they ask, then total of cube roots of unity, sum मतलब total, is always 0. ठीक है, ये अब हमें प्रूव हो चुका है, हमें ये सब जानकारी प्रॉपर्टी की मालूम होती है ना, तो वी कैन अप्लाई दिस थिंग्स डायरेक्टली वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, कि ये जो चीज है ये 0 हुआ कैसे, ये पहले से हमने सब समझ के रखा है, ये प्रॉपर्टी के अंदर सेट होके रखे हैं हमने सब कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए टेक डाउन प्रोडक्ट of cube roots of unity is 1. प्रोडक्ट किसका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। तो इसको नोटेशन के फॉर्मेट में क्या आ जाए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, तो के नोटेशन फॉर्म में आ जाइए 1, प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, उसका प्रोडक्ट ले लिया देखो, और ये प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, तो क्या 1 आना चाहिए। तो इसको भी हम सेटिस्फाई करते हैं बाय टेकिंग LHS, तो क्या 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा, व्हाट वाज ओमेगा, -1 प्लस √3i, -1 प्लस √3i अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस √3i अपॉन 2। ये देखो तीनों तीन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड इट इज अ प्रोडक्ट। सो तीनों का प्रोडक्ट लेना है, 1 का तो मल्टीप्लीकेशन में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में आप देख लो, दोनों जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर ये -1, तो कि यहाँ पे भी -1 है, √3i, तो कि यहाँ पे भी √3i है, खाली फर्क बीच का क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो हुआ क्या, a प्लस बी, ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो इसका एक्सपांशन दिया हुआ है, सो वी कैन राइट दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म। 1 को तो भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, सो इट इज गोइंग टू बिकम -1 स्क्वायर माइनस √3i होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन 2 into 2, that is going to be 4। तो ये अब आप -1 का स्क्वायर 1 माइनस √3i होल स्क्वायर, दैट इज 3i स्क्वायर अपॉन 4, एंड -1 minus 3 into what is I square, I square is -1 upon 4, this is going to be 1 minus 3 into -1, that is plus 3 upon 4, which is 4 plus 4 upon 4, that is going to be cancelled, and answer is 1, which is our RHS। सो ये बात नक्की हो गई कि भाई कॉम्प्लेक्स
नंबर के अंदर जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जब हम उसके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट ढूंढते हैं, that is obviously going to come 1. And now moving towards few more properties, in that we are going to take next property as property number 5th. Take down property number 5th, in which number 1, omega is equals to 1 upon omega square, and number 2, omega square is equals to 1 upon omega. This is what the next property. एक्चुअली ये दोनों इंटरडिपेंडेंट ही है, एक मतलब दोनों का जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ से दिखेगा, लेकिन ये प्रूफ के तौर पे आया कहाँ से? हाउ डू वी जनरेट दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन? तो के as in the beginning we have started with cube root of unity, where we have written this first 3 steps, where 1 का क्यूब रूट इज इक्वल्स टू एक्स हमने अज्यूम करके एक्स के तौर पे हमने नोटेशन अज्यूम किया था. सो 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब हुआ, और ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल 0. फिर हमने उसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला से उसको आगे सॉल्व किया, और उसमें से हमने सब बाइफरकेशन करके कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स अलग और एक रियल रूट जो मिला वो अपने अलग अलग किया. टोटल मिला के 3 क्यूब रूट हमको यूनिटी के मिल गए. फिर उस पे से हमने अलग अलग उसके प्रॉपर्टी की बातें रखी और उसको सेटिस्फाई करते चले गए. एंड लास्टली द फिफ्थ प्रॉपर्टी, that omega is equals to 1 upon omega square. As you have proved earlier, this particular fourth property, you see, 1 into omega square is equals to 1. So we know that since we know that 1 into omega square is equals to 1. What we can do, 1 को तो मल्टीप्लीकेशन में नेक्स्ट टाइम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है. डिवाइडिंग both sides by omega square. So what will be the next step? Therefore, omega into omega square upon omega square is equals to 1 upon omega square. So omega square will be cancelled. So what is the remaining part? Omega is equals to 1 upon omega square. This is what the property. हो गया ना प्रूफ? अब सेम वे से यहाँ पे भी सेकेंड टाइप का जो कंक्लूजन है, सिंस वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा जो हमको प्रूव करना है, उसमें यही स्टेटमेंट से हम शुरू करेंगे. 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ओमेगा. So omega into omega square upon omega is equals to 1 upon omega. Omega cancelled, therefore omega square is equals to 1 upon omega. This conclusion we get from this
प्रोसीजर। तो ये हमने प्रॉपर्टी का इस तरह का स्टेटमेंट हमने प्रूव कर लिया जो इसको सेटिस्फाई करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये सब कंक्लूजन कहाँ ना कहाँ हमको सम सॉल्व करने वगैरह में या आगे के प्रोसेस में काम में आएगा, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि अब हम कुछ कंक्लूजन के तौर पे, कुछ रिजल्ट के तौर पे बात करेंगे। खास करके ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। ये बात यहाँ से हमने देखी कि भाई शुरुआत में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फोर्थ में 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 को तो छोड़ दो, मल्टीप्लीकेशन में कोई मतलब नहीं है। तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होना है? ओमेगा क्यूब, एंड दैट इज गोइंग टू बी 1। तो वही चीज जब हम ओमेगा क्यूब के तौर पे लिख रहे हैं, ओमेगा इज अवर नोटेशन जो हमने बाद में इंट्रोड्यूस करके लिखा है सही, दैट इज ओनली द पार्ट विच आई एम रिफ्लेक्टिंग राइट नाउ, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। एक्स इन जनरल वे वी राइट फॉर इक्वेशन, ये आपको सबको मालूम है, बट वो एक्स को हमने फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तौर पे ओमेगा का नोटेशन दे दिया। ये भी हमने देख लिया कि फिर हमने उसका जो क्यूब रूट्स डिराइव किया, वो क्यूब रूट्स का नोटेशन हमने फिर उसको ओमेगा के तौर पे उसको असाइन कर दिया। बट इनिशियली दिस वन वाज considered as x cube, and that x cube is nothing but the omega cube, and therefore the property in which I have considered this particular omega cube is equals to 1. So यहाँ से एक स्टेटमेंट हमें कंसिडर करना है कि पावर में, ओमेगा के पावर में 3 या तो 3 के मल्टीपल में कोई भी नंबर रहेगा। समझ में आ रहा है? 3 या तो 3 के पावर में कोई भी नंबर रहेगा तो आंसर जो है वो ऑलवेज 1 आएगा। तो आंसर जो है वो ऑलवेज 1 आना है। सो 3 की जगह पे ओमेगा के पावर में ऐसा कोई नंबर है जो 3 के मल्टीपल में है। चलिए, ओमेगा रेस टू 6, तो के ओमेगा क्यूब होल रेस टू 2 मैं लिख सकता हूँ। पावर को इस तरह से प्रोडक्ट में पावर ऑलवेज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई। सो व्हेन आई राइट पावर 6 as in terms of cube whole raised to 2, that means 3 into 2 is going to be 6. Power is always going to be multiplied. So ओमेगा क्यूब हो गया 1, 1 का स्क्वायर बाहर है वो 1 बन जाएगा, दैट इज अगेन राइट हैंड साइड 1 आ गया, देख लो। सो इट इज ऑलवेज ओमेगा के पावर में 3 के मल्टीपल में कोई भी नंबर रहेगा तो आंसर 1 आएगा। इन जनरल में बोल देता हूं, in general I can write omega raised to 3n is equals to 1, and now I have written 3n because 3n is going to give you idea about that there's a number is a multiple of 3। 3n लिखा है जो पावर में, उससे आपको पता चलता है कि whatever the power will be there, it is multiple of 3, and hence always it gives आंसर 1। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसके तौर पे जो एग्जाम्पल मैंने ये लिया, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आप कंसिडर कर सकते हो जिसके अंदर पावर में क्या हो जाना है, मल्टीपल ऑफ 3 का नंबर आपको कंसिडर हो जाना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन।
And very important, next conclusion I am taking, number 7. So there is one more conclusion which we can derive. As you understand, we can write omega raised to 4 as omega cube into omega. So ये ओमेगा क्यूब जो है वो तो 1 है, इंटू ओमेगा. अब ये 1 जो कंसिडर किया है वो ओमेगा क्यूब के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन जो ओमेगा के साथ है दैट इज हैविंग पावर 1, नथिंग इज देयर इन द पावर, सो इट इज 1. अब ये 1 का कंक्लूजन हमने जो यहाँ लास्ट प्रॉपर्टी में इन जनरल लास्ट में जो लिखा है ना, omega raised to 3n, so this 1 can be written as omega raised to 3n into omega as it is. अब देखो ये दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, बेस में ओमेगा है जो सेम है, तो पावर का क्या होगा, एडिशन. ओमेगा रेस टू नथिंग दैट मींस 1, so this can be written as omega raised to 3n plus 1. तो फाइनली ये जो स्टेप मैंने लिखा है 1 into omega, that is only omega, and this is finally concluded as omega raised to 3n plus 1, which both can be considered as omega raised to 3n plus 1 is always going to be omega. So this is what the general conclusion we can verify. So this way certain properties, but very important, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो हमने शुरुआत से ली है, उसके कुछ शुरुआत की प्रॉपर्टीज, और ये जो है न्यूमेरिकल कंक्लूसिव प्रॉपर्टीज जो हमने प्रूव करके भी देखी, ये सब कहाँ ना कहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आने वाली है. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू बिगिन द क्वेश्चंस. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको हम शुरू कर देंगे. टिल दैट ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमारा जो है वो आपको रिवाइज करना है अबाउट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. थैंक यू फ्रेंड्स.